Good morning, everybody. If you are watching me, just share this class to more of your friends so that they can get access to our Vairagya session, and let us make this session successful. So, what are the things that are going in the news? Is Israel and Palestine war is not going to end? There is Ayurveda for One Health organized by National Bikers Rally. Israel Palestine is going on in tribal youth exchange program called on by the President of India, and Australia India Education Skill Council. Then we will discover some of the new species which were in the news, and we will also see the G20 protocols and Niti Aayog's commitment to fulfill it. Sustainable development goals are there. So there are many things that are on the table which can be asked in upcoming examination for UPSC, UPPSC, and ROARO. We are also looking in the Uttar Pradesh. So it is one of the most notable examination of all time. Now, what is going around in this area is the people are threatened by the attack of Israel, and Israeli people are also being counter-attacked. But as entry of superpowers has been seen, that is superpowers vis-a-vis USA and USSR, that is Russia, not USSR, it has been named as Russia. So as superpower enters, they talk about nuclear crisis. Keep it in mind, न्यूक्लियर अटैक की बात यहाँ पे इसराइल के एक मिनिस्टर कर चुके हैं, that if the Hamas will not be destroyed, then Israel can be forced to use the nuclear power. And why it is so? Israel क्यों nuclear power use कर सकता है? Because of the situation being so grave, they are not able to control the situation, and the problem will keep on rising. If that situation will not be curtailed and controlled by Israel, that it could lead to again World War III. Therefore, I am saying it since 3 days that it is a clear notion of World War III like circumstances which we already seen World War I and World War II. So be alert and let us have call for peace. Now, what is Tribal Youth Exchange Program? Government of India has taken a Tribal Youth Exchange Program with the cooperation of Ministry of Home Affairs (MOH) along with the TYEP and Ministry of Tribal Affairs in order to provide amenities such as communication, education, health to all the tribal affected areas, in which we see areas of Chhattisgarh, areas of Madhya Pradesh are taken under the Tribal Youth Exchange Program because they are left-wing extremists providing it. Why there is left-wing extremism perpetuated in such areas of Madhya Pradesh and Chhattisgarh? देखिए यहाँ पे ये हो गया मध्य प्रदेश and some area is Chhattisgarh. Now due to mountain terrains, mountain plus river का जो confluence रहता है वहाँ पे hiding place बन जाता है, and when there is a hiding place there is extremism, there is radicalization, and government feel sometime lagging in the such areas to provide their impact of education, to have grasp over their bodies, to have control over power, to control of roads. Therefore these area become sometime alienated, and after that we see extremist tendencies. जैसे ये areas alienate हो जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे left wing extremist हो जाते हैं because of the Maoist plus Marxist group. So
CPIM का आप नाम जानते होंगे. These parties are actually active in those areas which are deprived in various policies and resources. So there is deprivation. When there will be deprivation, there will be impact of political alliances which will ask for rights. So ऐसे एरियाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एंड टू मेक यूथ mobilize towards health wellness, there is a tribal youth program. Now there is a nationwide bikers rally on the global message of Ayurveda for one health. What is Ayurveda? Ayurveda is a system of Indian medicines which based on uh, the vegetable, fruits, ashes and such kind of natural products. So that is called as Ayurvedic system for treatment of any disease. In this system, the only parts such as pulps, fruits, as well as saplings are used for Ayurvedic medicines. आप देखते हो घर पे भी अभी सर्दियों के मौसम में आयुर्वेदिक च्यवनप्राश आ जाते हैं, है ना. So such kind of awareness creation module is done by Rashtriya Ayurvedic Vidyapeeth, and people are going to have a bike rally across the world, across the India. People are traveling. So there is director of CARI, that is Central Ayurvedic Research Institute, New Delhi, which is flagging off here. So ये भारती, डॉक्टर भारती is there, इनको आप पिक्चर में देख रहे हो, ये फ्लैग ऑफ कर रही हैं आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ. तो आप देखते हो कि एलोपैथिक मेडिसिन जो हम लेते हैं अपने शॉप से, दे आर बेस्ड ऑन केमिकल्स एंड सॉल्ट्स, जिससे कि आपके बॉडी को नुकसान पहुंचती है, एंड फॉर लॉन्ग टर्म इट कॉज्ड health diseases and more repercussions than curing your body. Therefore, Ayurvedic medicine is most necessary and more suitable because of different conditions and no side effects. Therefore, there is a rally started from 9-10th November, Panchkula, in Ayurveda Day. तो Ayurveda Day कौन सा है? 9th of November, इसे आप याद रखेंगे. आयुर्वेदा डे को ये रैली हरियाणा में पंचकुला पहुंच जाएगी. Now, Bikers Rally has successfully organized in 11 cities across the country with Ayurveda for One Health. 11 शहरों में ये सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की जा चुकी है, एंड इट इज़ अंडर द कंपोजिशन ऑफ दिल्ली, पटियाला पंजाब, नेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी एट लखनऊ, नागपुर, जयपुर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम एंड अहमदाबाद. तो ये शहर आप याद रखोगे. 6 cities are there, so keep it in mind, remember it. Now आगे बढ़ते हुए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल AIESC is there, and AIESC has a meeting with IIT गांधीनगर. अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोऑपरेशन के लिए भी ये आ गया, Australia plus India ties, and it is also helping to develop the skill development. तो इसमें क्या हुआ है थोड़ा सा हम समझते हैं. गांधीनगर में आज ये ऑर्गेनाइज होने जा रही है. धर्मेंद्र प्रधान, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द हॉन जैसन क्लार MP of Education, Government of Australia, एंड ब्रैंडन ओकॉनर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया में आ चुके हैं. कहाँ पे? IIT गांधीनगर पे. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एजुकेशन एंड स्किल इज बीइंग ब्रॉट अंडर सेम इंस्टीट्यूशन फॉर्म. मतलब कि शिक्षा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको मिल रही है, साथ साथ स्किल्स ट्रेनिंग, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क स्किल ट्रेनिंग पहले से भी दी जा रही है. कौशल प्रशिक्षण के लिए नीति आयोग की स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोली गई हैं, और उसके साथ साथ कौशल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए पॉलीटेक्निक्स, ITIs एंड इवन द BTech कॉलेजेस आर कमिटेड. सो
first Australian Indian Education Skill Council is meeting to be held in IIT गांधीनगर। ये फर्स्ट मीटिंग होगी ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट कर सकें स्किल डेवलपमेंट के लिए। कौशल प्रशिक्षण से क्या होगा? दे विल हैव प्रैक्टिकल नॉलेज टू क्रिएट सर्टेन थिंग्स, टू क्रिएट मोटर व्हीकल, टू क्रिएट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक थिंग्स, टू क्रिएट सोलर आइटम्स और टू क्रिएट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन चीज़ों के लिए ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ कौशल प्रशिक्षण। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल काउंसिल इज अ बाई नेशनल बॉडी established in 2011 year, and there has been a strategic direction of education, training and research partnership between the two countries. Now the scope of this forum was enhanced in alignment with the national priorities with both countries, promoting internationalization of skill डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। कोई भी ट्रेनिंग या स्किल्स अगर आपको मिल रही है तो एक ग्लोबल सर्टिफिकेट अगर उस पर डाला जा रहा है देन इट विल बी वैलिड फॉर द इंटरनेशनल प्लेसमेंट ऑल्सो। सपोज करिए कि पैनासोनिक और सैमसंग लाइक कंपनीज आपको प्लेसमेंट में लेना चाह रही हैं, और टेस्ला मोटर्स इज़ देयर, एमजी इज़ देयर, तो इन कंपनीज़ के लिए भी आपको स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। कहाँ से? ऐसे कनक्लेव से जिसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आपको एजुकेशन के साथ साथ स्किल इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। नाउ मेटी हैज़ इशूड अ ब्लॉकिंग ऑर्डर अगेंस्ट 20 इलीगल बेटिंग ऐप। आप देख रहे हो वर्ल्ड कप चल रहा है या आईपीएल चलते रहता है, ऐसे सिचुएशंस में जो फ्रॉड कंपनियां हैं ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये ऐप चलाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज महादेव बुक। ऐसी ऐप चला दी इन्होंने। सो इट इज़ इलीगल अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट की 69A धारा के अंतर्गत ये प्रोहिबिटेड है कि आप ऐसे भ्रामक और लोगों को फंसाने वाले फ्रॉडस्टर ऐप नहीं चला सकते। On the request that has been revised by ED राजीव चंद्रशेखर, सो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, that is taking clear cognizance of the matter which is on the table. Now Niti Aayog is to organize workshop on acceleration progress on sustainable development goals. Acceleration progress on sustainable development goals क्या है? In the G20 New Delhi Leaders Declaration तो आप देखते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। पहले यूनाइटेड नेशन ने प्रोवाइड किया है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य। इस लक्ष्य के माध्यम से आपको क्या मिल रहा है? फर्स्ट टारगेट नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, एंड देयर इज नो malnutrition, proper education to everybody, and female health improvement, water, urban development, cities एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए क्लाइमेट प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन, अर्थ प्रोटेक्शन, ये सारे मेजर्स इसमें डाले गए हैं। नाउ सम स्टेट्स हैज़ बीन कैटेगराइज्ड फॉर अचीविंग सम टारगेट्स, यानी कि नो पॉवर्टी के लिए तमिलनाडु हैज़ बीन देयर, ज़ीरो हंगर इज केरला, गुड हेल्थ एंड वेलबींग गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन केरला, जेंडर इक्वालिटी छत्तीसगढ़, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोवा, decent work and economic growth is Himachal Pradesh that gets the card, and industrial innovation and infrastructure is Gujarat is again top, reduced inequalities in Meghalaya, sustainable cities and communities in Punjab, responsible construction and production in Tripura, climate action is best in Odisha जहाँ पे olive ridley turtles मिलते हैं, life below water is better again in Odisha because it is
seashore area. Life on land is good in Arunachal Pradesh. Now इसे आप ध्यान रखोगे because it can be asked and it is frequently asked in state PCS examinations. Coming back to topic, नीति आयोग ने क्या बोला है कि एक्सेलरेशन प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्रिएट करना है, जिसकी प्रॉमिस हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया G20 की मीटिंग में दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में डाल चुकी है. Now workshop seeks the facilitation, discussion and action on implementation of SDG, and the goal was taken to have progress on sustainable development targets via 6th November 2023. कहाँ पे हो रहा है ये ऑर्गेनाइज? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में. So workshop organized association with the Institute of Human Development and Center for Social and Economic Progress. So IHD along with Center for Social Economic Progress, Institute of Human Development के साथ ये पार्टनरशिप में हो रही है. There is think tank, academia and other stakeholders with SDG in India. There is title, सी टाइटल क्या है? न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन एज प्राइम इनेबलर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा ये क्या हैं? प्राइम इनेबलर्स हैं ह्यूमन कैपिटल एंड प्रॉस्पेरिटी के विकास के लिए. मुख्य रूप से ये चीज़ें काम करती हैं जिससे कि मनुष्य का सतत विकास होता है. So that will be driven under SDG priority targets. Now what other things to be taken under this? हंगर को मिटाना और मैल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना, दिस SDG टारगेट बाय नीति आयोग. तो यूनाइटेड नेशन इस टारगेट को कैरी ऑन कर रही है इन डिफरेंट कंट्रीज, बट इंडिया में पर से नीति आयोग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत में ये लागू कर रही है. इट इज़ इनेबलिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल, सेफ, न्यूट्रिशियस, healthy diets and strengthen research and cooperation in climate resilient and nutritious grains. It is ensuring good health for all, focused on ways to strengthen services to advance good health including preparedness for pandemics and infectious disease, जैसे कि कोविड वगैरह ऐसी बीमारियां, महामारियां फैल रही हैं, उसको बचाने के लिए स्वच्छता, साफ सफाई, क्लीनलीनेस, नीटनेस एंड पोषण के अभियान जरूरी हैं. तो ये इंश्योर कर रहा है 3 थिंग्स: हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन एलिमिनेशन, सेकंड इंश्योरिंग गुड हेल्थ फॉर ऑल, एंड थर्ड इज डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव हाई quality education and skill training. So hunger plus malnutrition is there. Second, good health, स्वास्थ्यपूर्वक जीवन. तीसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, that is quality education. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो वर्कशॉप किस मॉड्यूल में हो रही है? hybrid module. That means it will have the participation of domestic owners under G20 and it will have the private partners also. जहाँ भी hybrid mode आ गया वहाँ पे समझ लीजिए कि 2 different kinds of peoples are attached. 2 parties जहाँ भी attach होगी उसका नाम होगा hybrid. तो यहाँ पे hybrid players में कौन से आ रहे हैं? Educational institutions, शिक्षण संस्थान, उसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स, and partners are there. So G20 NLLD and encouraging domestic ownership to have the global advancement and the critical development objectives, जो कि G20 की मीटिंग में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था. आपको याद होगा G20 आपने देखा होगा, तो वहाँ पे मीटिंग्स के बीच बहुत सारी प्रोमिसेस की गई थी. नाउ द थीम इंक्लूड G20 to G21, डेटा फॉर डेवलपमेंट, टूरिज्म, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ट्रेड, इंडियन डेवलपमेंट मॉडल, वुमेन लेड
development, reforming multilateral development banks, climate finance and green development. Okay, इसे याद रखेंगे. Now coming to the new topic, that is scientists of Botanical Survey of India have discovered a new species of epiphytic plant Lysionotus namchumi. क्या नाम है इसका? Lysionotus namchumi. कहाँ पे? बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में पक्के रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व है जहाँ पे, पक्के टाइगर रिजर्व याद है सबको. सो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये पाया गया है. ठीक है. और ये क्या है? एक प्रकार की फूल वाली पौधी है, फूल का पौधा है जिसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस बहुत बढ़िया है. सो रेंज क्या है? फ्रॉम हिमालयस इज रीडिंग टू जापान, इंडो चाइना एंड 50% ऑफ एंडेमिक स्पीसीज. सो यानी कि तिब्बत बॉर्डर, तिब्बत आपको दिख रहा है यहाँ पे ना. तिब्बत से कनेक्टिंग एरियाज जो भी हिमालय के क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं. And it has thick leaves, attractive purple flowers, and it is categorized as critically endangered by IUCN Red List. तो International Union for Conservation of Nature IUCN की रेड लिस्ट में इसे रखा गया है. That is critically endangered. And it is epiphytic in nature and grows another plant. तो ये एपीफाइटिक है. जब एपीफाइटिक कहा जाएगा इसका मतलब क्या है कि पहले से कोई पौधा है यहाँ पे, मान लीजिए सपोज करिए कि बेलाडोना का पौधा है. सो इसके ऊपर, इस पौधे के ऊपर ये ग्रो करेगा. इट विल टेक सपोर्ट ऑन अनदर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फ्लावर, तो उस पर ये एग्जिस्ट करेगा. सो एपीफाइट प्लांट्स मोस्टली कहाँ पे मिल रहे हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. आप बोलोगे सर कहाँ है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल? दिस इज ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ. कैप्रिकॉर्न और कैंसर, इसके जो लोकेलिटीज वाले रीजन हैं जहाँ पे न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा सर्दी, और कुछ माउंटेनियस टेरेन है जैसे कि यहाँ पे हिमालयस का क्षेत्र आ गया. तो ऐसे एरियाज में एपीफाइट्स प्लांट होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी नमी मिलेगी, जहाँ पे रेनफॉल होगी. इन सच एरियाज एपीफाइट प्लांट्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. नाउ बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के की फैक्ट्स देखते हैं. इट इज एपेक्स टैक्सोनॉमिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. BSI क्या है? टैक्सोनॉमिकल रिसर्च. प्लांट की स्पीसीज पे, फॉरेस्ट पे, पर्यावरण पे जो भी रिसर्च होना है उसको बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगी. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 13th February 1890 अंडर एक्शन ऑफ सर जॉर्ज किंग. इसे आप याद रखोगे. 13th February 1890 को बनी थी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अब ये देख लीजिए ब्रिटिशर्स की एक अचीवमेंट है जॉर्ज किंग के द्वारा. एंड द मैंडेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ब्रॉडेंड बाय द बायो सिस्टमैटिक्स रिसर्च, फ्लोरिस्टिक स्टडीज, डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेसिंग ऑफ नेशनल बॉटेनिकल कलेक्शन, डिजिटाइजेशन ऑफ हर्बल स्पेसिमेंस. हेडक्वार्टर इसका BSI का हेडक्वार्टर कैलकाटा है, यानी कि कोलकाता. अब देखते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है. व्हाट आर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? सो एज आई सेड 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ के बीच के एरिया में जो एग्जिस्ट करेंगे एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना. इट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन forest. It is also called the lungs of the earth, and it has the ecosystem which is found in the region near the equator and characterized by high rainfall.
क्या होगी यहाँ पे, बहुत हेवी रेनफॉल होगी एंड देयर विल बी वार्म टेम्परेचर, तो इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। And these forests are incredibly rich in biodiversity and are home to a wide variety of plant and animal species. बहुत सारे plants plus animal species, जैसे कि आप देखते हो ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट, अमेज़न, then forest of Meghalaya, Assam and Himalayan forest are all part of it. So there is lots of animals and plants and we need to protect it. Now what is environmental DNA? eDNA or environmental DNA is a different kind of DNA. तो ये इसको क्यों न्यूज़ में लाया गया है, why it is important? Environmental DNA has been very important because of LACONA, that is Laboratory for Conservation of Endangered Species, है ना। तो ये लेबोरेटरी क्या कर रही है, इसने कुछ चीज़ें सर्च आउट की हैं कि रिपोर्ट्स के द्वारा, और देयर इज CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसने भी इसको बढ़ावा दिया है। तो इन चीज़ों के द्वारा हम देखते हैं बारंबार कैसे ये आगे बढ़ रही है, what are the conditions that are helping to get it done. Now हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ रही हैं, what are the things that are working along with it. थोड़ा शेयर कर लें सेशन को भाई, है ना। Now environmental DNA क्या है? eDNA is shared by all organism into their surroundings. eDNA कैसे बढ़ रहा है, जो भी पहले से DNA मौजूद हैं, अब इनको याद रखेंगे, लैकॉन्स और CCMB, इनके साथ मिलकर ये खोज की जा रही है जिसमें कि इन्वायरमेंटल DNA को खोजा गया। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मेगाट्रॉफिक न्यूज़ है। नाउ पहले से DNA आपकी बॉडी में मौजूद रहता था, इन ह्यूमन बॉडीज इज देयर डिऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप देखते हो कि DNA के अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करती है ना। सो नाउ दिस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट इटसेल्फ, दैट आर द स्पीसीज and the plants and the bodies or organism that are surrounding through the natural process, and वो बर्फ के अंदर डिके होने डेथ होने के बाद if they are down inside the snow they preserve human information also. So it is saying that the cellular material shed by the organism via skin excrement, यानी कि आपके स्किन से, यानी कि कोई टाइगर अगर मर गया हो तो टाइगर की स्किन से कोई चीज़ निकली हो या उसकी बॉडी से कोई चीज़ निकली हो और वो प्लांट के किसी पार्ट में रह गई हो या किसी ट्री पे, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट प्लांट और ट्री एंड दैट एनिमल, the decayed material of this plant and tree has carrying the same information that is present in that part of the tree. So that is a function of environmental DNA, to carry the information in terms of DNA of such animals. आपको समझ में आ रहा होगा। So इस मेथड में एक्वाटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट सैम्पल्स को कलेक्ट करके एक ट्री वो रखे रहती है, जब कोई भी एनिमल या कोई भी बॉडी डिके हो जा रही है फिर भी उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। दैट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि DNA को प्रिजर्व किया जाता है इन स्नो बॉडीज और इन सम लेबोरेटरी, बट इन नेचुरल इकोसिस्टम, प्रकृति अपने पास खुद ही इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रही है। दिस मेथड इज सीन एंड द टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज by sequencing the DNA fragments found in the environmental samples such as water, soil and air,
And this method can detect all kinds of organisms such as viruses, bacteria, archaea, यूकैरियोट्स, फंगाई, प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, इवन किसी पक्षी जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इवन द डायनासोर्स विच आर एक्सटिंक्ट, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर की जा सकती है ईडीएनए के द्वारा. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ईडीएनए की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? इट रिक्वायर्स फ्यू लीटर्स ऑफ वाटर सैंपल, कुछ पानी की सैंपल आप ले लीजिए, विदाउट एनी डायरेक्ट कैप्चर और काउंटिंग ऑफ स्पीसीज, एंड देन द फिल्टर आउट ईडीएनए फ्रॉम इन्वायरमेंटल सैंपल. ये वाटर के सैंपल कहाँ से लिए जाएंगे? किसी लीव से या ब्रांच से, इन टर्म्स ऑफ वाटर. अब लीव से या प्लांट से जो वाटर लेके स्टोर कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग की जाएगी, एंड दैट टेस्टिंग थ्रू डिफरेंट एजेंसीज हैज बीन आइडेंटिफाई अ सोर्स ऑफ ईडीएनए. ठीक है, अब इस सैंपल को टेस्ट किया जाएगा लेबोरेटरी में, और इससे किसी भी प्लांट, एनिमल, फॉर एग्जांपल चीता जो एक्सटिंक्ट हो गया है, तो भारत का चीता हो गया, डायनासोर हो गया, कोई बर्ड्स हो गई, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं. एंड सच मेथोडोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पेसीज, इन्वेसिव एलियन स्पेसीज जो कि कहीं पे घुसपैठ करके किसी अदर स्पेसीज को थ्रेटेन कर दे रही है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेक्ट कर ली जाएगी इन रेयर एंड क्रिप्टिक स्पेसीज. नाउ ईडीएनए कैन आल्सो रिवील the presence of human remains, and the new method is cheaper, faster, highly scalable to large freshwater and marine ecosystem. Marine ecosystem जो ओशनिक सिस्टम है, तो यहाँ पे आप देखते हो प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स, ये सारे मौजूद हैं. इनके अंदर से भी कोई इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है तो वहाँ के वाटर बॉडी से आपको निकल जाएंगी, फिर आप उसको कंजर्व कर सकते हो, है ना. नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड्स. इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इट स्टोर्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक ब्लूप्रिंट. ये क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, कहते हो कि मुझे कोई डिजीज हो रही है, देन डॉक्टर टेस्ट योर ब्लड सैंपल्स एंड योर डीएनए. इससे आपकी डिजीज डिटेक्ट हो जा रही है. डीएनए कैरीज इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द रेगुलेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम प्रोटीन्स टू सेल्स एंड इंटायर ऑर्गेनिज्म. And so Hyderabad based research development eDNA sequencing method to assess the biodiversity, इसको हैदराबाद सेंटर पे खोजा गया है. Now a new species is there, that is Pancorius sebastiani. What is this Pancorius sebastiani? Pancorius sebastiani इज ए स्पाइडर. ये क्या है? मकड़ी है. हार्ट, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ये कहाँ पे है? शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्टर्न घाट. कोलम डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न घाट इन केरला, एंड दिस सेंचुरी derives its name from Chinkuniji gluta tricornia, species endemic to this nature. So there is कंट्रोल ऑफ अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ पे अगस्त मलाई बायो रिजर्व है जिसके अंदर भी ये मकड़ी पाई जाती है. अब इसे प्रिजर्व करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट बिकम्स अ रेयर स्पेसीज. सो देयर इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेवर एवरग्रीन फॉरेस्ट present in this area which are major part of this century, and fauna includes tiger,
Gores, elephant, sambar, deer, sloth bear, Malabar raven, Malabar banded swallowtail, and red disc blush brown. ये सारे एनिमल आपको अगस्त मलाई बायो रिजर्व में मिल जाते हैं. वाई अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कैसे काम कर रहे हैं? अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है. और उसके साथ साथ क्या है इसके अंतर्गत? इट हैज़ बीन a resting place and breeding place of many species around the world. वर्ल्ड के बहुत सारे जो रेयर स्पीसीज हैं वो आपको नीलगिरी हिल्स में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में मिल जाते हैं. यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व located in the western Ghat. So it is situated in the Indian state of Kerala and Tamil Nadu and named after Agast Mala. अगस्त माला के नाम से ये बन गया अगस्त मलाई. And it is prominent peak in the region and considered to be संत अगस्त ऋषि के नाम से ये बन गई है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व. सो आज के लिए इतना ही. सम क्वेश्चंस देखते हैं जो आज की क्लास से बनते हैं. That is, explain the working of TYEP by elaborating schemes for tribals in India. भारत में आदिवासियों के रक्षा के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी स्कीम बनाई गई हैं उनकी विवेचना करें. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडियन और इंडियाज डेवलपमेंट. Next question. Analyze the impact of skill development mission. Then elaborate the importance of biosphere reserves. Okay, so keep on writing to me t.me/gsrevolt पे आप लिखेंगे. If you have any doubt, you can call me, you can contact me. So we are providing free mentorship for UPSC and UPPSC as well as BPSC also. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.